which we really, really appreciate. So the second thing that really struck me the last 2 years, I was president of CII when COVID started, and we were involved with many video conferences with the government every day. So I asked many people, which country has done better than India in terms of health or the economy during COVID time? And this is not the result of just senior people, government or industry or associations doing work, but everyone from top to bottom contributed towards doing well and getting the country out of COVID on a safe wicket. Our Chief Minister Bommai ji also, I think he converted his house into an ICU. Everyone worked hard, top to bottom. And with this spirit that we work with each other, as inclusive with each other, get India on the world map to a position we deserve is going to be the way for the next 25 years. Very proud to reach 75 years of independence, and I look forward for another 25 years. Sometimes I wish I was 20 years younger. The next 20 years look so exciting at work, and great way to go. Thank you very much. Thank you, Mr. Kirloskar, for sharing your message with us. Ladies and gentlemen, I would now like to invite Dr. Sanjeev Goenka, Chairman for RP Sanjeev Goenka Group, to share his remarks with us. Adarniya Shri Amit Shah ji, Honorable Minister of Home Affairs and Cooperation, Mananiya Shri Kishan Reddy ji, Honorable Minister of Culture, Tourism and Development of Northeastern Region, Mananiya Shri Basavaraj Bommai ji, Honorable Chief Minister, Government of Karnataka, Shri Govind Mohan ji, Secretary, Ministry of Culture. Ladies and gentlemen, let me add my own welcome to each one of you to this special Sankalp Se Siddhi conference. It is an honor for India at 75 Foundation and the CII to host this very special convention. It's special because of the presence of a very special individual. Someone who's a true visionary, a strong doer, an exceptional leader, someone who leads from the front in thought and in deed, someone who leads by example, someone who walks the talk, someone who is an inspiration not only for industry but for every Indian. Our Honorable Home Minister, Shri Amit Shah ji. Sir, you honor us by your presence. Thank you so much. His presence not only reflects the high importance given to developing the vision for India at 100, but also mirrors the government's very strong intention to involve all stakeholders, and particularly industry, in this mission. Prime Minister Modi and Home Minister Amit Shah have repositioned India, reprofiled India, and today every Indian is viewed with respect globally. Honorable Prime Minister was one of the first leaders of India to recognize the intent and potential of the India at 75 campaign in 2008. His support over the years has lent wings to this movement and given shape to people's aspirations, from skilling to digital transformation, innovation to education. There is a new India that's emerging under the clarion call of Sabka Saath, Sabka Vikas. Adarniya Mantri ji, I'm proud to apprise you that India at 75 Foundation, jointly with CII, has been working to accelerate India's development journey by catalyzing important collaboration between industry and other stakeholders groups in areas critical to the nation's development, such as volunteering initiative,
functional literacy program, and national volunteering grid. The India at 75 Foundation, set up by CII with industry leadership, has been championing the cause for facilitating and encouraging volunteerism to enable larger participation and collaborative efforts. We are now working to transform the India at 75 into India at 100 Foundation. CII and India at 75 have commenced the visioning exercise for India at 100 already. From the India at 75 Foundation, I pledge that we will remain committed towards collective actions with full enthusiasm, and we will participate in the Har Ghar Tiranga campaign of the Government of India. We in the RP Sanjeev Goenka group as well will be participating in the campaign, and we will encourage all our partners and vendors to do the same. May I once again thank Honorable Shri Amit Shah ji for encouraging us with his presence. His words, advice, and direction will be most valuable as we look to make the vision at India at 100 a reality. I'm sure you all agree that he is somebody that every Indian looks towards, looks up to, with respect and reverence. He symbolizes the spirit of a new India, of a determined India, of an India which is determined to succeed. Sir, thank you for your inspiration and guidance. We pledge to work with you in realizing and supporting you in your vision of an inclusive India by 2047. Thank you. Thank you so much, Dr. Goenka, for sharing your remarks with us. Ladies and gentlemen, I would now like to invite Mr. Sanjeev Bajaj, Chairman and Managing Director for Bajaj Finserv Limited, to deliver his industry remarks. A round of applause for him, please. आदरणीय अमित शाह जी, श्री बोम्मई जी, श्री किशन रेड्डी जी, Ministers, Government of Karnataka, other dignitaries on and off the days. Good morning. It's a pleasure to be here in the presence of such a distinguished list of guests. आदरणीय अमित शाह जी, मैं कुछ ही हफ्ते पहले आपको मिलने आया था और उस समय हमारी जो आकांक्षा है इंडिया 2047 के लिए, ये जो अमृतकाल की पीरियड है, इसके बारे में हमने कुछ चर्चा की थी. Honorable Chief Minister, we met yesterday, and as CI, we are fully supportive to working with the state government in the many areas that you highlighted. हमारी ये जो आज़ादी की अमृत महोत्सव है, ये बहुत ही स्पेशल साल है. सेलिब्रेशन की एक पीरियड है, लेकिन ये एक अनसर्टेनिटी की पीरियड भी है. As the pandemic hopefully is coming to a close, we are faced with high inflation because of the impact of Ukraine, and we are also going through significant geopolitical shifts. लेकिन इसमें हमें ये सोचना होगा कि ये challenges में एक बड़ी opportunity है इंडिया के लिए. दुनिया आज इंडिया की तरफ देख रहा है कि can India be that sure sourcing partner for the world? And I think this is the biggest gift that we could have got in our 75th year. हमारा भरोसा यह है कि 2047 तक इंडिया एक $40 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकता है, और सिर्फ एक डेवलप्ड कंट्री ही नहीं, लेकिन एक लार्ज कंट्रीब्यूटर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अलग अलग एरियाज में बन सकता है. लेकिन ये करने के लिए हमें एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब होना होगा, एक ग्लोबल सर्विसेज हब होना होगा. हमारी जो एक्सपोर्ट्स है इन्हें डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल करनी होगी, और इसके थ्रू करोड़ों यूथ को नए वेल पेइंग, सोशली सिक्योर जॉब्स मिलेंगे.
I would like to compliment our government for very proactively working in a number of these areas, from the 14 PLI schemes announced हुए हैं, the multimodal Gati Shakti program, national infrastructure pipeline and startup India. अलग अलग विषयों में जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ में काम करके ये नई दिशाएं हमारे लिए सेट कर रही है, दिस इज इंडीड कमेंडेबल. हमारी जो वैक्सीन प्रोग्राम 2 बिलियन वैक्सीनेशंस, दुनिया ये देख रहा है कि ये कैसे हुआ. एंड वी हैव सम ऑफ द key companies that played a significant role sitting over here with them. A big thanks to them as well. लेकिन while we celebrate today, we have to plan for tomorrow. हमें ये प्लान करना है कि अगले 25 साल में कम से कम 8 से 10% जीडीपी ग्रोथ होना ही है. इसके लिए मैं जब आदरणीय गृह मंत्री के पास गया था, मैं तो इसी इंट्रोडक्शन करने गया था, लेकिन ये मुझे बोले कि आप सीआई सोचिए कि ये कौन से 10, 12, 15 सेक्टर है जहां बड़े इंपोर्ट्स हो रहे हैं, जहां हमारे यूथ में काबिलियत है, जिन्हें बाहर जाके R&D करने का जरूरत नहीं है. वी कैन प्रोवाइड देम दैट प्लेटफॉर्म हियर, और जहां हम स्केल बिल्ड कर सकते हैं. और अमित शाह जी, ये हम वर्क कर रहे हैं इस पे, और जल्दी से ही आपके पास एक रिपोर्ट लाएंगे विद सम ऑफ आवर आइडियाज. और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि जब आप आओगे तो हमें ये भी बताइए कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या कमी है. दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्लग. वी बिलीव दैट अ फ्यू मोर सेक्टर्स कैन कम अंडर PLI. वी विल शेयर दैट विद द गवर्नमेंट. जिस तरह से PLI की फोकस शुरू हुई है, हमारी एक और इसमें रिक्वेस्ट है कि एम्प्लॉय लिंक्ड स्कीम्स, ELI, स्पेशली फॉर सेक्टर जहां बड़ा एम्प्लॉयमेंट होता है, टूरिज्म, लॉजिस्टिक्स, रिटेल, फिल्म, एनिमेशन एंड गेमिंग, ये जरा सोचे तो इट विल ऑल्सो हेल्प विथ एम्प्लॉयमेंट एंड क्रिएटिंग लार्ज स्केल. मैं कुछ समय बात करूंगा गवर्नमेंट की ड्राइव के कारण किस तरह से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और इसमें खुद का मैं कंपनी का बजाज फिनसर्व, बजाज अलियांस का 2 मिनट बात करूंगा कि इंडिया डिजिटल स्टैक और आधार, मोबाइल फोन एंड डिजिटल पेमेंट्स has revolutionized India. जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, 40% of global payments now on a month-on-month basis are happening in India, more than the US and China combined. One single company like Bajaj is, because of our digital network, able to do 1 lakh loans a day, over 2 lakh insurance policies a day. और हम हर साल 50 से 60 लाख भारतीय नागरिकों को फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में लाते हैं, जो नहीं तो लोकल मनी लेंडर के पास चले जाता. बट हमें 10 ऐसे कंपनीज चाहिए, 100 ऐसे कंपनीज चाहिए, तब इंडिया बढ़ेगा. वी बिलीव दैट द डिजिटल फोकस इज गोइंग टू ब्रिंग ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया. और गवर्नमेंट की जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर रही है, इससे हमें लास्ट माइल तक कॉमन मैन का कैश फ्लो दिखने लगता है. एक बार हमें कैश फ्लो दिखे, वी कैन देन गिव देम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स. सो आई कमेंड द गवर्नमेंट टुवर्ड्स दैट एज वेल. फ्यूचर में अगर हमें बढ़ना है, देन वी हैव टू फोकस नॉट ओनली ऑन बिल्डिंग आवर स्ट्रेंथ्स इन ट्रेडिशनल एरियाज, लेकिन जो ग्रीन क्लाइमेट चेंज का अपॉर्चुनिटीज आ रहा है इन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड मल्टीपल न्यू एरियाज दैट विल कम अप, इसमें इंडिया लीडर बन सकता है. पिछले 50 साल, 100 सालों में इनोवेशन वेस्ट में ही हुई है, हमने उसका लाभ लिया है. क्यों ना इन द न्यू एरियाज इनोवेशन हम यहाँ करें और दुनिया को उसका लाभ दें. दैट इज व्हाट वी होप टू बिल्ड टुवर्ड्स. I would like to conclude by once again thanking all the dignitaries for being present over here and would like to commit to say कि government की जो हर घर तिरंगा campaign है, इसमें the Bajaj Group will actively participate and also encourage our partners to do that, so we can proudly celebrate today and we can prepare for the next 25 years. Thank you.
Thank you, Mr. Bajaj, for sharing your ideas with us. Ladies and gentlemen, now to address on the occasion, we would like to welcome our guest of honor. So let's give him a thunderous round of applause, as I would like to invite our Honorable Chief Minister, Government of Karnataka, Shri Basavaraj Bommai ji, onto the dais. A big, big round of applause, please. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. It has been a unique occasion. The reach of our Honorable Prime Minister, the connect of our Honorable Prime Minister is such that Azadi Ka Amrit Mahotsav and CIA are jointly celebrating it. And probably this is the first time such an occasion has come, because I have seen Suvarna Mahotsav of our independence. It was almost like a government functions. But I am really happy that CIA has taken a lead initiative, and on this occasion in Bangalore, in Karnataka, having our honorable leader who is representing a strong India, Sri Amit Shah ji, Honorable Home Minister and Cooperative Minister, Government of India, and the main catalyst to bring all this is our young leader, Sri Kishan Reddy, Honorable Minister for Culture and Tourism, Government of India, Sri Charanjit Banerjee, DG CIA, Rajan Naveen, Sri Sanjeev Puri, Vikram Kirloskar, Sanjeev Goenka, Sanjeev Bajaj. Ladies and gentlemen, it has been quite a journey, 75 years. 75 years for an individual might be the last leg of the journey, but for a country, 75 years is just a young youth journey of 25. And the 25 years of a youth with little experience, but for a country, 75 years, which is equal to 25, but huge experience. Country has gone to a lot of ups and downs in the last 75 years. There were good times, there were turbulent times. Democracy was challenged. The inherent strength of the people has brought it back. There has been policies, long-term policies, working policies, non-working policies. Then we have in between paralysis of policies. Now the policy which can make in India. The Atmanirbhar itself speaks of the self-confidence of a country. As an individual needs a self-confidence to move on, a country needs a self-confidence to move on. And our Honorable Prime Minister has really instilled that self-confidence in every citizens of this country. A hope of a last man in this country is the strength of this country. A last man, normally who is in despair, even though a lot of things are happening around him, but when the last man becomes a part of that happening, then the hope grows, the glow grows in his eyes, and that will be the future of this country. That is the strength of the future of this country. That is what Sabka Saath and Sabka Vikas is all about. If I may to add, it not be out of context, the reality is we need leader with a vision and a orientation. At the same time, we need leaders
who can really take it along to reach the goal. So we need a visionary leader and we need a very strong leader. And I'm proud to say that we have got a visionary leader in our Prime Minister and we have got a very strong leader in our Amit ji who can make it happen. Karnataka is in the forefront of development of this country. Thanks to our elders right from Maharaja days, they have put such a strong foundation with the progressive growth in education, in health, in trade, commerce, industries, technology. The strength of the Karnataka is the technology. And thanks to a lot of people all around the world who has now invested in Karnataka. Karnataka has been in the forefront during our permit Raj also. But however, unleashing the strength of the Indian made Karnataka to take a big leap in the fields where it was dominated by the West. The ITBT, the technology front, we are no less than any other country. Hence, that kind of a confidence which has brought in has moved Karnataka ahead. Now, we have got 400 world-renowned R&D centers, right from genomatics to space. This speaks volume. I am telling you that no other city in the world has got renowned 400 R&D centers. We have done such a R&D patents, maximum patents are here in biotechnology, in IT, startups. It is not only these niche areas. Karnataka has been very strong in agriculture. Nature has blessed us. We have got 10 agroclimatic zones. That means all 300 days of agriculture activity. We have got 300 sunshine days. That means maximum photosynthesis is happening here. That's why the major biodiversity is found in, hotspots are found in Karnataka. 1% growth in agriculture will trigger 4% growth in manufacturing sector and 10% in service sector. Therefore, all the industrialists sitting here and all over the country should look into agriculture. It is not just a food security, it's an economic security also. Hence, the connectivity between agriculture to the service sector has to be as strong as possible. And I am sure with the policies which are being placed in, our Prime Minister said that we will double the income of a farmer. That speaks volume. The 5 trillion can be achieved, and that is directly connected to the doubling the income of the farmer. That's how the agriculture-based country, where even now 60% of the population is still striving on agriculture, can move on. Because economy is not money, economy is people. The people's activity. I can sanction 100 crores for a road, nothing is going to happen. But when that man, that worker, in the scorching heat, if he puts that tar and moves it, then the vehicles move on, then the economy moves. So the movers and shakers of economy are the bottom of the pyramid. That care has to be taken in the next 25 years to make the Amrut Kal. And I don't want to take much because my honorable leader is here. Karnataka is striving to make minimum $1 trillion contribution for our $5 trillion of our Prime Minister's economy. And we have got a roadmap done.
We have got sectorial plans, and shortly we are going to do it. And as our all the leaders were speaking of all these things, I am just giving you the information that Karnataka has got first R&D policy done, and the cabinet has approved it, and we are putting forth where the incentives, not only incentives, encouragement, and all the connections will be there from garage innovations to the institutional innovations. The second policy which we have done is employment policy. The industries will be incentivized not only for their capital investment, but the number of people they invest. So this is a new policies we are putting in place. Then we have got a semiconductor policy, we have got electrical vehicle policy. Already industries are coming into that. And of late, we have taken a big leap in renewable energy. I have signed a MOU for more than 110 lakh crores of rupees in renewable energy. That is for hydrogen fuels and manufacturing of ammonia from seawater. Hence, we are in forefront, and industry's contribution in this growth of Karnataka is always recognized, honored, and we look for your valuable suggestions and guidance to take forward. Ultimately, all of us should stand up on this occasion and say that we are with our Honorable Prime Minister to make Amrut Mahotsav into Amrut Kal. The whole country has to do this. Then only we can see. We are not just celebrating this. We are putting a very strong foundation for celebration of our next generation. It is a celebration to celebration. Hence, there is a vision in this Amrut Kal, and I wish that everybody will contribute into this, and I am very happy that CIA has done a wonderful job by taking this lead, and we all will be the part of Amrut Kal, success of Amrut Kal, and I wish that we all will celebrate together 2047 together that Amrut Kal. Thank you so much. Thank you very much, sir. Dhanyavadagalu for your encouraging words. Could we have another huge round of applause, please? Thank you. With this same heartfelt applause, please keep continuing, because we are, and I would now like to invite our guest of honor, Honorable Minister of Culture, Tourism and Development of Northeastern Region Government of India. Please put your hands together for Shri G. Kishan Reddy ji. I would request you, sir, to please address the gathering. संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम के मंच पे विराजमान आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, भारत के यशस्वी गृह सहकार मंत्री सम्माननीय श्री अमित शाह जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका श्री माननीय बसवराज बोम्माई जी, और इस कार्यक्रम में सभी डायरेक्टर जनरल सीआईआई श्री चंद्रजीत बनर्जी जी और श्री संजीव बजाज जी, श्री संजीव गोयंका जी, श्री विक्रम किर्लोस्कर जी, श्री आर दिनेश जी, श्री संजीव पुरी जी, 3 Sanjeevs in the stage, श्री गोविंद मोहन जी, हमारे कल्चर सेक्रेटरी, all the respected industry leaders of the country, मीडिया के सभी मित्रों और इस कार्यक्रम में उपस्थित भाइयों और बहनों, आप सबको भारत सरकार की ओर से, खासकर कल्चर मिनिस्ट्री की ओर से आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं।
साथियों, आज भारत का आजादी का अमृत महोत्सव संदर्भ में संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से सीआई और इंडिया 75 फाउंडेशन से मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजित किया है। इसलिए मल्टी स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी अतिथि और प्रतिनिधि को मैं स्वागत करता हूं। एक संकल्प से सिद्धि, नया भारत नया संकल्प के साथ इंक्लूसिव इंडिया 100 का इंट्रोडक्टरी कार्यक्रम होगा, जिसमें हम सब मिलकर भविष्य के और भारत को एक विश्व गुरु भारत का संकल्प लेना है। आज भारत में $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है और 2025 तक $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाना है। इसी अचीव करने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी सरकार ने देश में ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए अलग अलग हम संकल्प लिए हैं और अलग अलग चेंजेस भी किया है। साथ ही भारत ने आत्मनिर्भर बनाने के लिए संकल्प किया है। आज वर्ल्ड बैंक की ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस मार्किंग में 190 भारत उसमें 62 पोजीशन पर थी, जो 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले। आज दुनिया में 190 देश में भारत 8 देशों को पीछे छोड़कर अभी 142 पोजीशन पे आया है और इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए एनवायरमेंट और सिक्योरिटी जो महत्वपूर्ण जरूरत होती है। और आपको मालूम है 2014 से पहले भारत में आईएसआई का गतिविधि थे, बेंगलुरु के सहित हमारा हैदराबाद से सहित दिल्ली, बंबई, भोपाल जैसा अलग अलग इंपॉर्टेंट सिटीज में बलाम्बास्टिंग होता था, कर्फ्यू होते थे, कम्युनल क्लासेस होता था। आप चेंजेस देखिए, इस 8 साल में नो बॉम्ब ब्लास्ट इन एनी इंपॉर्टेंट कैपिटल सिटीज, नो कर्फ्यूज, नो कम्युनल क्लासेस, एवरीवेयर इन पीस, नॉट ओनली इन इंपॉर्टेंट सिटीज। यू टेक इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, मैं उस प्रांत का डेवलपमेंट का जिम्मेदारी दिया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी। क्या 15-15 दिन, 20-20 दिन रोड ब्लॉकेड होता था, कर्फ्यू लगते थे, इंसर्जेंसी ग्रुप्स का आंदोलन होता था। आज नॉर्थ ईस्ट में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन पे विशेष ध्यान देते हुए आज नॉर्थ ईस्ट में पीस आया। लगभग 40 साल के बाद पीस आए। अभी पीस के कारण हम एक्टिविटी बढ़ा रहे, पीस के कारण हम नॉर्थ ईस्ट में रोड कनेक्टिविटी, नॉर्थ ईस्ट में एयर कनेक्टिविटी, नॉर्थ ईस्ट में ट्रेन कनेक्टिविटी, नॉर्थ ईस्ट में वाईफाई कनेक्टिविटी, नॉर्थ ईस्ट में पॉलिटिकल कनेक्टिविटी भी सभी 8 प्रांतों के सरकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी केंद्र सरकार मिलजुल कर नॉर्थ ईस्ट में विकास की ओर ले जाना चाहते हैं हम। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इंसर्जेंसी के गतिविधि को हटाकर आज अमित शाह जी के नेतृत्व में अलग अलग इंसर्जेंसी ग्रुप्स के साथ पीस एग्रीमेंट्स करके आज काम करने में, डेवलपमेंट में बढ़ावा दे रहे हैं। आज मैं बताना चाहता हूं, नॉर्थ ईस्ट में
दो प्रमुख रूप से कैपिटल में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 1190 किलोमीटर लॉन्ग रेलवे लाइन और ऐसी 5 स्टेट कैपिटल को अनुसंधान करने वाले प्रोजेक्ट्स को आज पूरा हो रहे हैं। आज मैं रोड कनेक्टिविटी के बारे में लगभग 80,000 करोड़ खर्च करके नॉर्थ ईस्ट में हम नेशनल हाईवेज का विकास कर रहे हैं। वैसा ही टेलीकॉम कनेक्टिविटी हम आने से पहले लगभग 7,000 विलेजेस में टेलीफोन कनेक्टिविटी नहीं थी। अभी टेलीफोन कनेक्टिविटी का काम भी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में स्पेशल ध्यान देते हुए विकास की ओर ले जा रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल फार्म का नॉर्थ ईस्ट में बढ़ावा देने के लिए PLI जो भारत सरकार के द्वारा लगभग 11,000 करोड़ रुपए हम नॉर्थ ईस्ट और कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स में खर्च कर रहे हैं। इसलिए आज इस मंच के माध्यम से मैं सभी इंडस्ट्री होल्डर्स को नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर क्षेत्र में और जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। ए न्यू इंडिया दैट ऑफर्स कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ए न्यू इंडिया दैट प्रॉमिसेस एंटरप्रेन्योरशिप, ए न्यू इंडिया दैट इनवाइट्स वर्ल्ड टू मेक इंडिया। पिछले सालों में हमने भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक्सपोर्ट के मामले में कई रिकॉर्ड्स तोड़ा है। भारत का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट $50 बिलियन का एक ऐतिहासिक हाई लेवल को छू लिया है। भारत का नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट 2014 में तुलना में आज 109% बढ़कर $6.1 बिलियन हो गया है। 2014 से तुलना में भारत का शुगर एक्सपोर्ट्स $US में आज 291% शुगर एक्सपोर्ट बढ़ा है। वीट एक्सपोर्ट में 2020 में $568 मिलियन से 4 गुना बढ़कर इस एक साल में वर्तमान में 21-22 में $2.12 बिलियन हो गया है। आज भारत मिल्क दूध में सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व में मिलेट्स बाजरा के सबसे बड़ा उत्पादक है। जूट और अदरक जिंजर के सबसे बड़ा उत्पादक दुनिया में भारत नंबर 1 है। आज हम मैंगोस और पपाया का सबसे बड़ा उत्पादक है और कास्टर ऑयल के सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। कायर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भारत है। कॉटन सीड्स का इंडिया नंबर 1 है वर्ल्ड में। लेमन और नींबू का, प्याज, ऑनियन का सबसे बड़ा उत्पादक आज इंडिया है। और दाल पल्सेस में भी आज भारत नंबर 1 बनने का रास्ते में आगे बढ़ रही है। इस ताकत में और दम पर हम कुछ भी आने वाले दिन में आजाद का अमृत महोत्सव में हम आगे बढ़ सकते हैं। एक विश्वास के साथ हम आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसके सिर्फ वैल्यू एडिशन करके जो भारत में जितने भी प्रोड्यूस होता है उसको वैल्यू एडिशन करके दुनिया के बाजार में हम नंबर 1 हर क्षेत्र में होना है। इस विषय पर मैं CII को गंभीर से सोचने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। भारत हर क्षेत्र में विश्व गुरु बनना है। इसके लिए हमारा इंडस्ट्री बढ़ेगा, इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इससे हमारा रोजगार बढ़ेगा, भारत का GDP बढ़ेगा और दुनिया के बाजार में भारत के प्रोडक्ट्स को मांग बढ़ेगा। ये काम आत्मनिर्भर भारत के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ना है। और आज भारत में दुनिया में मोस्ट अट्रैक्टिव FDI डेस्टिनेशन बनकर उभर के आ रहे हैं। 2014 से लेकर आज तक भारत को लगभग
$523 बिलियन US FDI का भारत आया है, जो 2007 में और 2014 के यूपीए सरकार के तुलना में 96% अधिक वृद्धि हुआ है। कोई भी इंडस्ट्री के लिए एक और जरूरत कनेक्टिविटी होती है, वो मैं अभी बताया था। नॉट ओनली नॉर्थ ईस्ट इंडिया, देश भर में एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, ट्रेन कनेक्टिविटी, वाटरवेज कनेक्टिविटी, टेलीकॉम कनेक्टिविटी आज बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र मोदी जी सरकार प्रयास कर रही है। आजाद से 2014 तक 90,000 किलोमीटर्स का नेशनल हाईवेज थे। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इस जो मोदी सरकार आने के बाद 8 वर्षों में 70,000 किलोमीटर्स का नया रोड्स 8 साल में नेशनल हाईवेज बनाया है। मैं अमेरिका में जब 1993 में मैं गया था, उधर का रोड देखते थे, हमारे देश में ऐसा रोड्स कब होगा। मगर आदरणीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बनने के बाद इस नेशनल हाईवेज का स्वर्ण चतुर्भुज के नाम पर शुरुआत हुआ है, मगर बीच में उसका नेशनल हाईवेज का बढ़ोतरी कम हो गया यूपीए समय पे। फिर आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद रोड कनेक्टिविटी का, नेशनल हाईवेज का तेजी से काम चल रहे, इतना स्पीड चल रहे, कोई देश में दुनिया में इतना स्पीड नेशनल हाईवेज कोई देश नहीं बना रहा है, वही हमारा भारत में बन रहे हैं। और आजाद के बाद देश में मोदी जी सरकार आए तक 64 एयरपोर्ट्स थे। आज पिछले 8 वर्षों में देश में 54 नया एयरपोर्ट्स हम बनाए हैं। आज कुला मिलकर 118 एयरपोर्ट्स आज देश के जनता के सामने आया है। इसमें 21 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स भी है। आज अगले 4 साल में सरकार का लक्ष्य है 100 नया एयरपोर्ट्स का भारत में लाने के लिए, और 100 एलिपोर्ट्स, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में हिल एरिया में एलिपोर्ट्स भी बहुत जरूरत है, हेलीकॉप्टर का सर्विसेज भी बढ़ाना है। इसके लक्ष्य में भी भारत सरकार काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ सी प्लेन नेटवर्क्स भी विकसित करने का रास्ता में हम भारत सरकार, हमारा सरकार आगे बढ़ रहे हैं। उससे वैसा ही अलग अलग ट्रेन का, आप लोगों को मालूम है, ट्रेन के बारे में भी, रेलवे कनेक्टिविटी के बारे में भी आगे बढ़ रही है, क्योंकि जो गुड्स ले जाने के लिए अलग अलग स्पेशल लाइंस, स्पेशल ट्रेन्स भी बढ़ावा दे रही हैं। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम गति शक्ति योजना शुरू किया है। इसलिए 5 साल में, इस आने वाले 5 वर्षों में 100 लाख करोड़ का खर्च करने का नरेंद्र मोदी जी सरकार आज प्रयास कर रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, आज हम, आपको मालूम है, दुनिया में सबसे बड़ा कोरोना के संदर्भ में फ्री फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन, दुनिया में सबसे बड़ा फ्री फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन किया है। आज दुनिया में सबसे बड़ा लार्जेस्ट वैक्सीनेशन कार्यक्रम, फ्री वैक्सीनेशन कार्यक्रम भारत में हो रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, आज भारत हर विषय पर आगे ले जाने के लिए नरेंद्र मोदी जी सरकार काम कर रही है। आज दुनिया में सबसे बड़ा डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रही है। हमारे देश में पहले बता रहे थे एजुकेशन नहीं है, बैंक्स नहीं है, कैसा होता है, नरेंद्र मोदी जी क्या बोल रहे, ऐसा लोग बोलते थे। आज बताइए, आज करके बताए, नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़े डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रही है। आज मैं नया बिजनेस शुरू करने के लिए कई ऋण योजना भी लागू किया है।
आज हम 74,500 अधिक से अधिक रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स, दुनिया में स्टार्टअप्स जो है मोदी सरकार में सबसे बड़ा स्टार्टअप्स आज भारत में है। आज 77.3 लाख स्टार्टअप्स आज नौकरियां स्टार्टअप के द्वारा मिला है। आज मैं बताना चाहता हूं 2 लाख करोड़ बजट से एलोकेशन के साथ आज PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स भारत सरकार ने शुरू किया है और 5 वर्षों में अलग अलग क्षेत्रों में लाखों करोड़ों का प्रोडक्शन कैपेसिटी लक्ष्य बढ़ाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। वैसा ही मोदी जी ने कहा था, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू बिजनेस, गवर्नमेंट टू encourage business sector, business people. Government is not a business to do business. Its a job is to think about the food for the poor, make houses and toilets and employment all the common people. This is the government of नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है। ये परिणाम है इंक्लूसिव डेवलपमेंट की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं 8 साल में और 11 करोड़ 60 लाख टॉयलेट्स देश में आज गरीबों के लिए, गांव महिलाओं के लिए मोदी सरकार बना है। पहले सोचते थे प्रधानमंत्री टॉयलेट के बारे में बात करते हैं। मैं गांव से आता हूं, सुबह सुबह 5 बजे उठकर हमारा बहन, हमारा माता लोटा लेकर झाड़ू के अंदर जाता था महिलाओं का गौरव बढ़ाने के लिए। आज नरेंद्र मोदी जी सरकार टॉयलेट्स का भी छोटा विषय होगा मगर इंपॉर्टेंस दिया है, मॉनिटरिंग किया है। आज 11 करोड़ 60 लाख टॉयलेट्स देश में जनता के सामने आए। गरीबों के लिए बैंक स्टेप्स कोई आते नहीं थे, गरीबों के लिए बैंक्स का कभी खुला नहीं था। आज नरेंद्र मोदी जी 45 करोड़ 72 लाख जनधन खाते खोला है और 2 करोड़ 47 लाख से अधिक गरीबों के लिए घर का निर्माण किया है और किसानों के लिए 11 करोड़ 42 लाख से अधिक फसल बीमा का किसानों का नंबर रजिस्ट्रेशन किया है। उज्ज्वल योजना में आज 9 करोड़ 27 लाख महिलाओं को उज्ज्वल योजना के अंदर सिलेंडर्स दिया है। आयुष्मान भारत में 10 करोड़ 74 लाख का परिवारों को लाभ मिला है। PM स्वनिधि योजना, जो गरीब है, रोड के ऊपर फुटपाथ के ऊपर बिजनेस करते हैं, उसका 50 to 60% डेली इंटरेस्ट में जाता था मगर गरीबों के लिए देखभाल करते हुए नरेंद्र मोदी जी सरकार PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत आज लोन लाखों लोगों को लोन दे रही है और भी इस योजना के अनेक योजना में इंक्लूसिव डेवलपमेंट के रास्ता पे भारत सरकार चल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं मनरेगा के काम आज लास्ट ईयर 83.82 लाख विलेजेस में आज काम हुआ है। छोटे बात नहीं है, गांव में गरीब के लिए, खेती में काम करने वाले गरीब के लिए मोदी सरकार काम करते हैं। PM किसान सम्मान निधि योजना किसान एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए और अलग अलग काम भारत सरकार काम कर रही है। अब फर्टिलाइजर सब्सिडी एक साल में लास्ट ईयर में 2.15 लाख करोड़ का सब्सिडी में फर्टिलाइजर सब्सिडी में भारत सरकार दे रही है। और वैसा ही मैं अभी बताया था PDS स्कीम में 80 करोड़ से अधिक फैमिलीज को आज PDS के स्कीम के अंदर गेहूं और चावल बांट रही है। PM गरीब कल्याण योजना अभी बताया था एक साल में, अभी वर्तमान साल में से तक जो कोरोना के समय 3.40
3 करोड़ 40 लाख करोड़ खर्च किया है इस विषय पर। 100 स्मार्ट सिटी के, जब भी अध्यक्ष जी बता रहे थे, 100 स्मार्ट सिटी में डेवलपमेंट के लिए अभी तक 2 लाख करोड़ हम खर्च किया है। जल जीवन मिशन में जो घर घर को पानी के देने का काम भारत सरकार हाथ में लिया है, इसके अंदर अलग अलग काम, पाइपों का प्रोडक्शन होते हैं, मोटर्स का प्रोडक्शन होते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है। उसमें 9 करोड़ अधिक से अधिक घरों को पीने का पानी अभी शुरुआत किया है। तेजी से काम बढ़ रहे हैं। मेरा कहने का अर्थ है कि इस योजनाओं में आम आदमी को भी लाभ देने का काम भारत सरकार तेजी से काम कर रही है। आज आने वाले दिन में सेल्फ सफिशिएंट हर क्षेत्र में हम बढ़ाना है। इसके लिए आपका योगदान, आपका इन्वॉल्वमेंट, इसमें बहुत कुछ वो काम आगे बढ़ सकते हैं। भारत अपनी आजाद की 75 इयर्स वर्ष पूरा करने के पर इस महोत्सव आजाद का अमृत महोत्सव में हम प्रेरणा देता है कि और हमसे अनेक अपेक्षा रखते हैं। आजाद के बाद यह सबसे बड़ा जन भागीदारी का अभियान दुनिया का, इतना बड़ा जन भागीदारी का अभियान आजाद का अमृत महोत्सव ना देश में कब हुआ ना दुनिया में कब हुआ। यह सबसे बड़ा कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे। इस आजाद का अमृत महोत्सव का इंप्लीमेंटेशन का नेशनल इंप्लीमेंटेशन कमेटी चेयरमैन अध्यक्षता आदरणीय प्रधानमंत्री गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को हम पूरे भारत सरकार की ओर से अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स के होते, आपके जैसे सीआई के, एफिकी के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से इन्वॉल्वमेंट करके, सभी लोगों की इन्वॉल्वमेंट करके इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। 150 से अधिक कंट्री में आजाद का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम आज भारत सरकार के द्वारा हो रहे हैं। जितने भी इंडियन डायस्पोरा दुनिया में 15 अगस्त को नॉट ओनली इन इंडिया, जितने भी विदेशों में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के द्वारा जितने भी डायस्पोरा है विदेशों में, उसी जगह पर भी हर घर के ऊपर तिरंगा लहराने का काम शुरुआत कर रहे हैं। वैसे ही मैं इस दिशा में हर घर तिरंगा का अभियान में मैं आप लोगों से भारत सरकार के द्वारा मैं प्रार्थना करता हूं, जितना भी अपने तरफ से हो सकता है सभी लोग इस काम में आप लोग सहयोग देने के लिए मैं आप लोगों से पर ध्यान देना चाहता हूं। आज हमारे को अलग अलग चुनौती है। हर चुनौती को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम और अवसर बदलने का काम करते रहते हैं। मैं इंडस्ट्रियलिस्ट को, जो कॉर्पोरेट कंपनीज को जरूर बताना चाहूंगा, भारत का पास अपार सामर्थ्य है। हम भी इस सामर्थ्य को दम पर इंटरनेशनल लेवल पर इंडस्ट्रीज में नया इतिहास रचना करने के लिए आप सब लोग आगे आना चाहिए। मैं इस शब्दों के साथ अभी एक B20 का जो G20 का सम्मेलन होगा, उसमें आप संबंधित B20 कंट्रीज का मीटिंग होगा। लगभग देश में 200 मीटिंग्स होगा G20 कंट्रीज। इससे आने वाले दिसंबर 1 तारीख से शुरू होके आने वाले नवंबर 30 तक 1 साल चलेगा। ये हमारे लिए सौभाग्य है। आजाद के बाद इतना बड़ा विदेशों का, बड़ा बड़ा देशों का रिप्रेजेंटेटिव का, अलग अलग सेक्टर का पहली बार आजाद के बाद भारत में होने वाला है। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, G20 कंट्री सफल बनाने के लिए हर कॉर्पोरेट कंपनी, हर व्यक्ति, हर इंडस्ट्री, हर साइंटिस्ट काम करना चाहिए। भारत का ब्रांड इमेज दुनिया भर में मोदी जी के नेतृत्व में आपके सहयोग से आगे बढ़ाने के लिए मैं आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। इसके साथ साथ आज पार्लियामेंट भी चल रहे हैं, मगर पार्लियामेंट समय के बाद भी आज हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, उनका बहुमूल्य समय कितना बिजी रहते हैं मुझे मालूम है। रात को हम लगभग 1:30 को इधर पहुंचे हैं रात में। इसलिए
सारे रात नींद छोड़कर देश के लिए काम करने वाले हमारे प्रधानमंत्री, हमें गृह मंत्री जैसे नेतृत्व हमारे को मिला है। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए इस कार्यक्रम के लिए आपको और आप पदाधिकारियों को और आदरणीय गृह मंत्री जी को मेरे ओर से धन्यवाद देता हूं। मैं समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। Thank you, sir. आपके प्रभावशाली शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Could we have a bigger round of applause, ladies and gentlemen? And continuing with the same thunderous applause, I would now request our chief guest to address the gathering. So please, everybody, put your hands together as I would like to invite on stage our Honorable Minister of Home Affairs and Cooperation, Government of India, Shri Amit Shah ji, everybody. संकल्प से सिद्धि सम्मेलन के अंदर आज मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान बसवराज बोम्मई जी, मुख्यमंत्री कर्नाटक सरकार, मेरे साथी मंत्री और मित्र भाई जी किशन रेड्डी जी, भारत सरकार में संस्कृति, पर्यटन और नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट का जिम्मा उनके सर पर है, श्री संजीव बजाज, श्री आर दिनेश, श्री संजय पुरी जी, श्री संजीव गोयंका जी, विक्रम किर्लोस्कर जी, चंद्रजीत बनर्जी जी, श्री राजन नवानी जी और मंच पर उपस्थित भारत सरकार के संस्कृति सचिव श्री गोविंद मोहन जी और आज यहाँ पर आए हुए सीआईआई के निमंत्रण पर आए हुए सारे गणमान्य अतिथिगण। थोड़ा समय ज्यादा ही हो गया है, मेरी बात मैं संक्षिप्त में रखने का प्रयास जरूर करूंगा जिससे कार्यक्रम समय पर समाप्त हो सके। मित्रों, आजादी का अमृत महोत्सव आप सभी जानते हैं कि देश को आजाद हुए 75 साल का ये अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय देश के प्रधानमंत्री और भारत सरकार ने लिया है। इसके पीछे 3 उद्देश्य है। एक तो हमारी नई पीढ़ी जो हमारे किशोर है, युवा है, जिनको आजादी के आंदोलन से बहुत ज्यादा सरोकार इसलिए नहीं रहा है कि वह अब इतिहास के पन्नों में चला गया है, मगर जब तक देश की नई पीढ़ी आजादी के आंदोलन की स्पिरिट, आजादी के आंदोलन में दिए गए बलिदान और आजादी के आंदोलन का इतिहास नहीं जानती है, वो कभी भी देश की विकास की प्रक्रिया से नहीं जुड़ सकती है। इसलिए आजादी के आंदोलन के माध्यम से हमारा एक उद्देश्य है कि देश की नई पीढ़ी देशभक्ति से सरोबार होकर देश के विकास के साथ जुड़े और लाखों नामी गिरामी अनामी लोगों ने देश को आजाद कराने के लिए अपना जो सर्वस्व न्यौछावर किया है, उनके साथ, उनके इतिहास से और उनके बलिदान के साथ अपने आप को जोड़ने का मौका मिले। दूसरा, 75 साल तक हमारे देश ने दुनिया में कई सारे क्षेत्र के अंदर अनेक उपलब्धियां प्राप्त की हैं। अंतरिक्ष से लेकर डेमोक्रेसी की जड़ें पाताल से गहरी करने तक कई क्षेत्र में हमने अनेक सारी उपलब्धियां हासिल की है। आज हम दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे वाइब्रेंट लोकतंत्र है, इसमें हमारे पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकता। ये सारी उपलब्धियों को एक बार जनता तक पहुंचाना है। जनता इस उपलब्धियों से अपने आप में गौरव का भाव खड़ा करे और एक गौरव से निर्मित आत्मविश्वास नए भारत की रचना के लिए काम आए, ये भी इसका दूसरा उद्देश्य है। और तीसरा उद्देश्य, 75 साल हो गया, शताब्दी भी आएगी। हो सकता है उस वक्त जब शताब्दी मनाई जाएगी ये मंच पूरा का पूरा चेंज हो गया होगा, कुछ लोग दुनिया में भी नहीं होंगे, मगर देश होगा, देश का भविष्य भी होगा। हमने ये आज ही सुनिश्चित करना है कि 75वें साल में एक संकल्प करना है, हर क्षेत्र के अंदर संकल्प करना है कि
शताब्दी जब मनाई जाएगी तब हर क्षेत्र में भारत कहां खड़ा होगा, भारत क्या अचीव करेगा और दुनिया को लीड भारत कैसे करेगा। और अगर ये संकल्प हमने लेना है तो संकल्प को सिद्ध करने की भी यात्रा का रेखांकन, उसका भी प्लानिंग हमने आज ही करना पड़ेगा। और संकल्प से सिद्धि का यह सम्मेलन उस अमृत वर्ष से लेकर शताब्दी के वर्ष तक का प्लानिंग का एक सम्मेलन है। और 75 वर्ष से 100 साल का जो काल है, वो काल मोदी जी के शब्दों में कहे तो अमृत काल है। मित्रों, ये देश आजाद होने के बाद 17 लोकसभा चुनाव हुए, 22 सरकारें आई, 15 प्रधानमंत्री आए। सभी ने कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट किया है, सभी ने इसको आगे ले जाने के लिए किया है। जो अपनी क्षमता थी, जो अपने विचार थे, जो देश की परिस्थिति थी, इसके अनुरूप देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। और मैं मानता हूं कि प्रयास के कारण ही आज हम यहां पर खड़े हैं। मगर आज मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि 8 साल से नरेंद्र मोदी सरकार ने और विशेषकर नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशी विकास को एक बहुत अच्छे तरीके से दुनिया के सामने रखने का काम किया है। और पूरी दुनिया चकाचौंध होकर भारत के विकास की गति को भी देख रही है, भारत के विकास के डायमेंशंस को भी देख रही है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां सुधार नहीं हुआ है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हम आगे नहीं बढ़े हैं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां रिफॉर्म नहीं किए गए हैं, और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां संभावनाएं बढ़ाई नहीं गई है। इतना सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशी विकास शायद ही कभी हुआ होगा। और मैं मानता हूं कि सर्व समाज के कल्याण के साथ ही मोदी जी ने भारत के निर्माण का जो संकल्प लिया है, इसमें उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति की तो झलक दिखाई ही पड़ती है, मगर साथ में जन भागीदारी का भी प्राप्त करना उनके स्वभाव की एक विशेषता है। मित्रों, मैं थोड़ा बैकग्राउंड में जाकर बहुत जल्दी से बताऊंगा कि 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, देश की इकोनॉमी की स्थिति क्या थी। सब लोग कहते थे कि पॉलिसी पैरालिसिस हो गया है, 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार हर रोज अखबारों के टाइटल बनते थे। और सीवीसी, सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट तीनों इस घोटाले के पीछे पड़ते थे। क्रॉनिक कैपिटलिज्म अपने चरम पर था, महंगाई की दर आसमान को छूती थी और फिस्कल डेफिसिट भी काबू के बाहर थी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हर रोज नीचे 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 गिरते जाते थे। दुनिया में हमारा सम्मान भी बहुत नीचे तक चला गया था। और उस स्थिति में देश ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया 2014 में, नरेंद्र मोदी को इस देश की धुरा देने का निर्णय किया। और बहुत समय के बाद, 30 साल के बाद, एक पूर्ण बहुमत की निर्णायक सरकार आई। पहले एक सरकार ऐसी थी जिसमें देश के प्रधानमंत्री को कोई प्रधानमंत्री ही नहीं मानता था और हर मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री मानता था, मालूम ही नहीं पड़ता था देश कहां से चल रहा है। एक निर्णायक सरकार देने का काम इस देश की जनता ने किया। और आज मैं जब पीछे मुड़कर 8 साल की ये यात्रा को देखता हूं तो आज दुनिया में हम सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था गौरव के साथ बने हैं। जीएसटी का सफल इंप्लीमेंटेशन कर चुके हैं और 1.68 लाख करोड़ रुपया का जीएसटी का राजस्व प्राप्त करना, पूरी दुनिया इसको बारीकी से देख रही। मैं सबको कहना चाहता हूं, ये पारदर्शी आंकड़े हैं, कंप्यूटर पर सब लोग देख सकते हैं और ये सिद्धि है। सबसे ज्यादा निर्यात 2022 में हुआ है। अब तक से सबसे ज्यादा सेवा निर्यात 2022 में हुआ है। एफडीआई सबसे ज्यादा 2022 में आया है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भी बड़ी छलांग लगाकर हमने बहुत सारा सुधार किया है। मित्रों, पिछले 8 साल के अंदर अर्थतंत्र को रिवाइव करने के लिए, अर्थतंत्र को मजबूत करने के लिए, न केवल रिवाइव करने के लिए, उसको दिशा देने के लिए भी नरेंद्र मोदी सरकार ने ढेर सारे प्रयास किए हैं। और अर्थतंत्र जब तक चैनलाइज नहीं होता, इसकी कोई सुनिश्चित दिशा नहीं होती, तब तक एक कभी भी देश के विकास के काम में नहीं आ सकता। व्यक्ति तो बड़ी बन सकती है, मगर जब तक
पूरे अर्थतंत्र को चैनलाइज कर सभी पैरामीटर्स को ठीक करते 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 एक दिशा में उसको नहीं ले जा सकते हैं, तब तक वो देश का फायदा कभी नहीं कर सकता। कंपनियां कुछ जरूर बड़ी बन सकती, देश बड़ा नहीं बन सकता है। हमने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया, ये दो नारों के बीच में भारत के अर्थतंत्र की एक दिशा तय करने का काम किया है, और पूरी अर्थतंत्र की दिशा, चाहे किसी भी प्रकार की पॉलिसी हो, ये दो नारों के बीच में देश को एक दिशा में ले गई है। और मैं निश्चित रूप से ऐसा मानता हूं कि आने वाले 25 साल जो अमृत काल के हैं, वो अमृत काल के 25 साल की नींव रखने का काम ये 8 साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मैं बड़े आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत को हल्के से लेने वाले लोग आज हिम्मत नहीं कर सकते, और 25 साल के बाद ऐसा कोई नहीं होगा जो अर्थतंत्र की दिशा में, क्षेत्र में भारत की शक्ति को मान्यता नहीं देता होगा। इस प्रकार के भारत के निर्माण करने की दिशा में हम निश्चित रूप से आगे निकल चुके हैं। और मित्रों, किशन भाई ने ढेर सारी चीजें बताई है, मैं रिपीटेशन टालना चाहता हूं, मैं सीधा 2019 पर आ जाता हूं। 2019 में मानव ने अपने मानव इतिहास में सबसे बड़ी महामारी का हमने सामना किया। महामारी जिस प्रकार से आई और जिस तेजी से फैली, सभी लोग दिग्भ्रमित और दिग्मूढ़ होकर बैठे थे कि क्या होगा, किस प्रकार से इससे हम बचेंगे, किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। ना दवाई थी, ना वैक्सीनेशन था। रिसर्च तो चालू करते हैं मगर सालों के सालों लग जाते हैं, हमें भी मालूम है। वैक्सीन आने के बाद अंतिम व्यक्ति तक लगाने के लिए भी सालों के सालों वो लग जाते हैं। और लॉकडाउन लगाना पड़ा। लॉकडाउन लगाने के बुरे परिणाम स्वाभाविक रूप से न केवल भारत, दुनिया भर के अर्थतंत्र पर हुई, पूरी सप्लाई की चेन बिखर गई। इस सारी समस्याओं के बीच में भारत ने अपने आप को एक नए मॉडल के रूप में प्रस्तापित किया है। दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों ने डिमांड को बढ़ाने का सुझाव दिया, बड़े बड़े पैकेज घोषित किए, नोटें छापकर बांटते गए, और भारत ने उसी वक्त एक नए प्रकार की नीति को अपनाया। सबसे पहले हमने महामारी के उपाय को ढूंढने का प्रयास किया। इसका वैक्सीनेशन बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कोविड आने के पहले ही महीने के अंदर साइंटिस्टों के साथ मीटिंग कर अपनी ऑफिस में एक हाई पावर कमेटी की रचना कर स्वदेशी वैक्सीन की निर्माण के लिए ढेर सारे प्रयास चालू कर दिए। क्योंकि इससे मंदी से उभर तो तभी सकते हैं जब सोसाइटी कोविड से उभर जाएगी। अगर सोसाइटी ही कोविड से नहीं उभरती है, देश ही कोविड से नहीं उभरता है, तो मंदी से उभरने की कोई सवाल नहीं है। और उस वक्त हमने बड़े बड़ी डिमांड बढ़ाने के लिए बड़े बड़ी पैकेज घोषित कर नोटें छापने की जगह हमने पॉलिसी पर कंसंट्रेट करने का काम किया। और इसके कारण आज दुनिया के सभी अर्थशास्त्री एक बात मानते हैं कि आफ्टर कोविड इरा में कोविड की इफेक्ट से सबसे पहले कोई अगर अर्थतंत्र उभर कर आया है तो वो मेरे और आपके महान देश भारत का अर्थतंत्र सबसे पहले उभर। और इस पॉलिसी के कारण ही हम जल्दी से इससे निकल कर आए। हां, हमने एमएसएमई को जरूर बचाया। एमएसएमई को बचाने के लिए हमने कई प्रकार के प्रयास किए। उनको वर्किंग कैपिटल दिया, 6 लाख करोड़ रुपया एमएसएमई को देने का हमने प्रयास किया। मुफ्त राशन देकर लोगों को टिकाने का, उनके मॉरल को टिकाने का प्रयास किया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीमें भी चालू की, जिससे व्यक्ति अपने आप को संभाल कर रख सकते। और कई सारी चीजें हमने कोविड के समय में ही करी। उसी वक्त प्रधानमंत्री जी कोविड होने के बावजूद भी, मैं भी बैठकों में जाता था, सुबह से शाम तक निरंतर बैठक करते रहे हैं। हमने फोकस के 5 स्तंभ तय किए। इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टमेटिक रिफॉर्म इन सिस्टम, डेमोग्राफी, डिमांड एंड सप्लाई। ये 5 स्तंभ के आधार पर हमने कोविड को टैकल करने का निर्णय किया। और मुझे
कहते हुए आनंद है कि मोदी जी की इसी पॉलिसी ने भारत को बाहर किया है, बाहर कोविड की इफेक्ट से बाहर लाने का काम किया है। मित्रों, 200 करोड़ के देश, 130 करोड़ लोग और 2 टीके, आप कल्पना करिए, कोई कल्पना ही नहीं कर सकता कि भारत ये मैनेज कर पाएगा। और मैं किसी देश की निंदा करने नहीं आया हूं, ना हमारा ये अप्रोच है, भारत का अप्रोच कभी ये हो ही नहीं सकता, मगर बड़े बड़े देश भी मैनेज नहीं कर पाए हैं। हमने 100 करोड़ लोगों को टीका लगा दिया, किसी को मालूम नहीं हुआ, कोई अफरा तफरी नहीं हुई। टेक्नोलॉजी का इतना अच्छा उपयोग शायद ही किसी देश ने कभी करा होगा। कई सारे देशों ने हमारी कोविन ऐप को मांगा है और स्वीकारा है, और व्यवस्था इस प्रकार की बनी, लाइनें तो लगी मगर आपको टीका भी लग गया, फ्री ऑफ कॉस्ट लग गया, सरकार ने कॉफी भी पिलाई और 30 ही सेकंड में आपके मोबाइल पर टीके का सर्टिफिकेट भी भेज दिया। और इसके कारण समाज कोविड के भय से मुक्त हुआ, और जब समाज कोविड के भय से मुक्त हुआ तो स्वाभाविक रूप से अर्थतंत्र में गति आई, और सबसे पहले जनजीवन सामान्य भारत में करने का हमें फायदा मिला। और हमने 80 करोड़ लोगों को 2 साल तक मुफ्त अनाज देने का भी काम किया, जिससे इनका जीवन कोविड के समय में बहुत अच्छे से चल सके। मैं आज गर्व के साथ कहना चाहता हूं मित्रों, दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जिसने 80 करोड़ नागरिकों को 2 साल तक भोजन उसके घर में पहुंचाने का काम किया है। केवल और केवल भारत एक ऐसा देश है। जनमानस को ढाढ़स दिलाने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम को भी हमने किया, और उसी वक्त हमने ढेर सारी पॉलिसियों को भी आकार देने का काम किया। उसी समय में नई शिक्षा नीति आई। आप नई शिक्षा नीति का अध्ययन आपकी इंडस्ट्री में एक टीम बनाकर जरूर करिएगा, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी। फिर नई ड्रोन नीति आई, नई स्वास्थ्य नीति बनी, आयुष्मान भारत के तत्वाधान के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लाखों करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करने की एक योजना बनी। कॉमर्शियल कोल माइनिंग का भी उसी वक्त निर्णय लिया गया। नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स भी उसी वक्त बनी। मेक इन इंडिया को कैसे स्ट्रेंथी किया जा सकता है, इसके लिए भी योजना बनी, इस पर मैं बाद में आता हूं। स्टैंड अप इंडिया को भी ताकत दी गई, स्किल इंडिया को भी ताकत देने का काम हुआ। डिजिटल इंडिया, उड़ान और वोकल फॉर लोकल, वो भी हमारी पॉलिसी का महत्वतम हिस्सा बने, ये भी कोविड के समय पर हुआ। ग्रीन इंडिया मिशन को भी कोविड के वक्त ही अनेक प्रकार के नीति विषयक निर्णय लेकर गति देने का काम किया। स्वच्छ भारत के माध्यम से हेल्थ सेक्टर को सुधारने का, जब तक स्वच्छ भारत अभियान सफल नहीं होता, स्वस्थ भारत अभियान कभी सफल नहीं हो सकता। स्वस्थ भारत अभियान की सबसे पहली नीड है स्वच्छ भारत अभियान, इस पर भी हमने थ्रस्ट दिया गया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अगर मैंने कह ही दिया, जनधन, आधार और मोबाइल का उपयोग कर हर व्यक्ति को अपना बेनिफिट अपने बैंक अकाउंट में दिया। सुलभ भारत, किशन भाई ने कहा कि आज एक भी घर भारत में ऐसा नहीं है जहां टॉयलेट नहीं है। हमें लगता है कि ये क्या छोटी छोटी चीजें हैं, मगर हमने किया है। जीएसटी, उसको भी स्ट्रेंथ देने का काम किया। उज्जवल डिस्कॉम, स्मार्ट सिटी, अनेक प्रकार की नीतियों का निर्धारण एक कोविड के 2 साल के अंदर किया, जिसके कारण अर्थतंत्र को हर क्षेत्र में गति मिलने का कारण हो। और इसके साथ साथ हम पीएलआई स्कीम लेकर आए। 14 सेक्टर्स हमने सिलेक्ट किए, मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक, ड्रग इंटरमीडिएट्स, मेडिकल डिवाइस, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट, ड्रग और फार्मा, स्पेशल स्टील, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, व्हाइट गुड्स, फूड प्रोडक्ट, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स, एडवांस केमिस्ट्री सेल, ड्रोन एंड ड्रोन कंपोनेंट। ये सारी पीएलआई के माध्यम से लगभग 30 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन बढ़ाने का योजना बनाया। और पीएलआई तो सिंबॉलिक है, कुछ ही लोगों को इसका फायदा मिलेगा,
क्योंकि इसकी मर्यादा है, कुछ हजार करोड़ हर क्षेत्र में सरकार इन्वेस्टमेंट में आपको सहायता करेगी, परंतु जो एक क्षेत्र के अंदर जाते हैं इसकी पूरी इकोसिस्टम को बदलने का काम, इसकी पॉलिसी बनाने का काम, पीएलआई अपने आप में आइसोलेटेड नहीं है। ये जो सेक्टर थ्रस्ट देने का जिस सेक्टर पर हमने तय किया है वो सेक्टर को आइसोलेशन में नहीं छोड़ा है। पीएलआई इसका एक हिस्सा है जो परिचय कराता है कि हाँ, भारत सरकार का ये थ्रस्ट एरिया है। इसके साथ सारी पॉलिसियों को भी हमने बदलने का काम किया है और मैं मानता हूं इससे भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का और आत्मनिर्भर भारत बनाने का बहुत बड़ा काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये पीएलआई तय करते वक्त हमने हमारे इंपोर्ट बिल को हमारी नजर के सामने रखा है। कौन सी चीजों को हम इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट बिल को भी सामने रखा है, हमारे स्टार्टअप की एक्टिविटी को भी सामने रखा है, क्योंकि स्टार्टअप आइसोलेशन में काम तो कर सकता है, यूनिकॉर्न भी बन सकता है, मगर इंडस्ट्री और स्टार्टअप के बीच में एक जुड़ाव है तो स्टार्टअप और इंडस्ट्री दोनों का फायदा होता है। इसके साथ साथ हमने हमारी मैन्युफैक्चरिंग चेन में क्या वैक्यूम है, कौन सी चीज टोटल मैन्युफैक्चरिंग चेन में बाहर से आती है, इसको भी कंसंट्रेट किया है और बहुत सोच समझकर ये सेक्टर हमने तय की है। इसके हमें फायदे भी मिले हैं और अभी तो शुरुआत है, आने वाले दिनों में इसके फायदा होगा। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में भारत जो 8 साल चला, इसका परिणाम मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आज आफ्टर कोरोना जीडीपी ग्रोथ हमारा 7.4 2022 का है। इसके सामने कंपैरिजन के लिए मैं कहता हूं, अगेन मैं किसी की टीका नहीं करना चाहता, यूएस का 2.3, जर्मनी का 1.2, ये तो चलो समझे सैचुरेशन की इकोनॉमी है, परंतु चीन 3.3 और ब्राजील 1.7 और भारत 7.4। यही बताता है कि हमारी नीतियां सफल हुई है और हमारी नीतियां परिणाम लाई। इन्फ्लेशन को भी ये जो जिन्होंने बड़े बड़े कार्यक्रम करे, नोटें छापी, पैकेज घोषित किए, आज मंदी में फंसे हैं। आज भारत का मुद्रास्फीति 7.1 जून का है, यूएसए का 9.1 जो कभी 2% हुआ करता था, तुर्की 73.5, अर्जेंटीना 58%, ब्राजील 12.30%। मैं इसलिए बता, कोई एक्सक्यूज नहीं है महंगाई का, मगर ये ग्लोबल सिचुएशन है, इसका दुनिया के अर्थतंत्रों के कंपैरिजन में ही हमने इवेल्युएट करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपके सामने कहता हूं, एफडीआई 14 से 21 की यात्रा में $440 बिलियन और दुनिया का 7वां फेवरेट डेस्टिनेशन हम बन चुके हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में किशन भाई से थोड़ा आंकड़े में गड़बड़ हो गई, हम 2014 में 142वें नंबर पर थे, आज 63वें नंबर पर आकर पूरी दुनिया को हम इन्वेस्टमेंट के लिए आकर्षित करते हैं। यूनिकॉर्न स्टार्टअप 2014 में एक था, आज 100 से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप लेकर आज भारत के युवा दुनिया के मंच पर भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। मित्रों, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के अंदर भी 2014-15 में हम 71 नंबर पर थे, आज 43वें नंबर पर आए हैं और बाकी सारे के बीच में स्पर्धा इतनी कम है, थोड़ा सुधार करते हैं तो हम 30 के अंदर आ जाएंगे, बहुत तेजी के साथ आ जाएंगे। मित्रों, रुपये का बहुत चर्चा होता है, मेरा सभी से विनती है कि फिर से एक बार इसको दुनिया के संदर्भ में देखना चाहिए। यूरोप, जापान, ब्रिटेन, ब्राजील और चीन के मूल्यों के साथ हमने अपना कंपैरिजन जरूर करना चाहिए। मित्रों, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरा मानना है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस कर महान भारत की नींव डाली है। अगली पीढ़ी के लिए एसेट्स क्रिएट करने का हमने काम किया है और इंडस्ट्री के लिए एक बहुत स्मूथ रास्ता तैयार करने का काम किया है। लगभग लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारे जीडीपी का 13% से विकसित देशों में 8%, उसको सुधारने के लिए पीएम गति शक्ति
मेरा आप सभी से आग्रह है, आपके यहाँ एक टीम पीएम गति शक्ति को भी समझे। पीएम गति शक्ति को अगर आप सब लोग, मैं सिर्फ टीवीएस वालों के लिए नहीं कहता हूं, सबके लिए कहता हूं, पीएम गति शक्ति को सबने समझना पड़ेगा। अगर पीएम गति शक्ति के आसपास अगर आप अपनी इंडस्ट्री के डिजाइन करते हो, इसको उस दृष्टि से डेवलप करने का सोचते हो, तो आपको भी बहुत बड़ा फायदा होगा। सामाजिक और इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने 100 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करने का निर्णय किया है। 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए हैं, 32 इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट क्षेत्र बनाए हैं और लगभग ट्रांसमिशन लाइन 3 लाख सर्किल किलोमीटर थी, इसको 8 साल के कम समय में बढ़ाकर 4,42,000 सर्किल किलोमीटर बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। पहले सिर्फ 60 पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा था, 8 साल में अब हम 1,50,000 पंचायत तक पहुंच चुके हैं और हमने लक्ष्य रखा है 2025 दिसंबर तक एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां ऑप्टिकल फाइबर की पहुंच नहीं होगी। मित्रों, मैं इसलिए बताता हूं कि सरकारें जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो मेहनत कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है, वो आपके लिए एक इकोसिस्टम को तैयार करी। मित्रों, लगभग नेशनल हाईवे 91,000 किलोमीटर था, इसको बढ़ाकर 1,34,000 किलोमीटर करा है और नवीनीकरण ऊर्जा की क्षमता लगभग 100 गीगावाट को पार कर गई है। पूरी दुनिया देख रही है, सोच रही है कि भारत ने कैसे किया है। मित्रों, मैं एक महत्वपूर्ण बात पर भी जरूर ध्यान रखना चाहूंगा। आबादी के लिए हमेशा विवाद चलता है कि आबादी कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए। आबादी चिंता का विषय है ही, मगर एक माने में आबादी मार्केट भी है और मार्केट तब होती है जब देश का ग्रोथ सिमेट्रिकल हो। भारत एक ऐसा अजूबा देश था जिसकी आबादी 130 करोड़ थी और मार्केट 80 करोड़ लोगों का था, क्योंकि 60 करोड़ लोगों के पास परचेसिंग कैपेसिटी ही नहीं थी। उनकी प्रायोरिटी उनके परिवार की पालना करना था। हमने गैस सिलेंडर दे दिया, टॉयलेट दे दिया, हर घर में पीने के पानी दे रहे हैं। लगभग पीएम किसान के माध्यम से 6,000 रुपया हर किसान को, 11 करोड़ किसानों को दिया। लगभग 2,57,00,000 लोगों को घर दे दिए। लगभग 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दे दिया। 43 करोड़ बैंक खाते दिए। डीबीटी के माध्यम से 300 के अधिक योजनाओं के 23 लाख करोड़ रुपया 8 साल में सीधा गरीब के बैंक अकाउंट में एक आने के करप्शन के बगैर पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। और 80 करोड़ लोगों को 2 साल से हम मुफ्त राशन दे रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये 60 करोड़ लोग अपने हर रोजमर्रा की चिंताओं से सरकार ने उनको मुक्त। हर आदमी सोचता है कि मेरा एक घर हो, घर में टॉयलेट हो, घर में बिजली हो, मेरा परिवार स्वस्थ रहे। ये चिंता में ही इसकी पीढ़ियां चली गई, समाप्त नहीं होती थी, पीढ़ियां चली गई। नरेंद्र मोदी सरकार ने 8 साल में ये सारी चिंताओं से उसको मुक्त कर दिया। अब वो क्या सोच रहा है? पहले परिवार का लालन पालन का सोचता था, अब वो क्या सोच रहा है? मेरे घर में एक स्कूटी आ जाए, मेरे घर में एक कूलर आ जाए, मेरे घर में एक टीवी आ जाए। और जो समय उसका घर का पेट भरने के अंदर जाता था, वो समय अब उसकी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए वो लगा रहा है। वो अपने आप को भारत के विकास के साथ जोड़ रहा है। जो अर्थशास्त्री होंगे उसका जरूर रिवोल्यूशन कर पाएंगे कि एक देश में 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जिसका देश के अर्थतंत्र को विकास करने के लिए 0 कंट्रीब्यूशन है, तो कितना बड़ा बोझ होता है। आज नरेंद्र मोदी जी ने वो 60 करोड़ लोगों को देश के अर्थतंत्र के विकास के साथ उसकी आकांक्षाओं को जोड़कर ये इकोनॉमी को और आपके मार्केट को 130 करोड़ का बनाने का काम किया है। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा काम है मित्रों। 130 करोड़ लोग जब मिलकर हमारे देश को, अर्थतंत्र को
कंट्रीब्यूट करते हैं, तब हमारी स्ट्रेंथ बहुत बड़ी बनती है। और एक प्रकार से मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मोदी जी ने अर्थतंत्र को एक मानवीय चेहरा बनाया है। मेरी कई अर्थशास्त्रियों से भी बात होती है, जो बुक पढ़कर अर्थशास्त्री बने, किताबें पढ़कर बने, कई बार बात होती है कि क्या कर रहे हैं आप। मैंने बोला एक बात बताइए, अगर हम हर व्यक्ति के घर में पानी पहुंचाते हैं, नल से पानी पहुंचाते हैं, तो जीडीपी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? फिर जवाब देते हैं हाँ बढ़ेगा। हर व्यक्ति को घर देने का प्रयास करते हैं तो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो क्या बढ़ेगा। 15 करोड़ लोगों को गैस मिलेगा तो जीडीपी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? वो कहता है हाँ बढ़ेगा। हम कहते हैं कि हर घर में बिजली पहुंचा देंगे और वो तो 200-300 रुपया बिजली का बिल भरता जाएगा, तो जीडीपी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा। तो मैंने बोला हम तो जीडीपी बढ़ाने का काम कर रहे हैं भैया, सिर्फ तेरी बुक्स में नहीं लिखा है इसलिए तू चिंतित है, चिंता मत कर। ये जीडीपी का ह्यूमन फेस है, हमने जीडीपी को शुष्क नहीं रखा है, ह्यूमन फेस देने का काम किया। और जब ये सारे लोगों का इच्छा आगे बढ़ने का देश के विकास के साथ जुड़ता है, तभी तो महान भारत की रचना होती है, तभी तो भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है और तभी तो भारत के अर्थतंत्र का विकास हो सकता है। ये विजन के साथ 8 साल से काम हुआ है, टुकड़े टुकड़े में काम नहीं हुआ है। हर व्यक्ति को स्वस्थ बनाना, हर व्यक्ति के घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाना, हर व्यक्ति को उसके परिवार के स्वास्थ्य की चिंता से मुक्त कर देना, ये 8 साल से हुआ है मित्रों। और मैं जरूर कहना चाहूंगा, अब जब सीआईआई के सामने आया हूं तब सीआईआई ने एक प्लेटफॉर्म बनना चाहिए R&D को बढ़ावा देने के लिए। अब भारत की इंडस्ट्री का टाइम आ गया है कि आप भारत की इंडस्ट्री उद्योग जगत ने अपनी स्पीड बढ़ाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, अपना स्केल बदलने के लिए सोचना चाहिए। स्पीड बढ़ाने के लिए सोचोगे तो पीछे पड़ जाओगे, अगर स्केल बदलने के लिए सोचोगे तो मैच कर कर आगे बढ़ जाओगे। और अगर स्केल बदलना है तो R&D को हमने थ्रस्ट देना पड़ेगा। हो सकता है पूंजी की कमी हो। मैंने जब बजाज जी मिलने आए थे तब उनको कहा था कि भैया आप एक कंसोर्टियम बनाइए 8-10 फील्ड का तय कर। हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, प्रोरेटा इन्वेस्ट करे, सरकार भी कुछ इन्वेस्ट करे, और जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रजिस्टर्ड होंगे, भारत में उत्पादन होगा और दुनिया में भी जाएंगे, तब वो प्रोरेटा ले लेंगे। मगर हम R&D तो करें। हमारे ही बच्चे विश्व के अंदर R&D के लिए सबसे अच्छा ब्रेन माने जाते हैं, वो भारत के अंदर R&D करे। इसके लिए मैक्सिमम प्रयास सीआईआई ने करना चाहिए। इंडस्ट्री को स्टार्टअप का बैकअप भी देना चाहिए। कोई भी स्टार्टअप आइसोलेशन में नहीं विकसित कर सकता अपनी संपूर्ण क्षमताओं के साथ। हालांकि शॉर्ट स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन चुके हैं, मगर इंडस्ट्री और स्टार्टअप के बीच में एक प्रकार का जुड़ाव होता है, स्टार्टअप आइसोलेशन में नहीं रहते हैं, तो अनेक गुना ज्यादा परिणाम हमें मिल सकता है। और तीसरा मेरा बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है सीआईआई को, जिसने इंडस्ट्री एज अ होल सोचना चाहिए। कोई एक इंडस्ट्री नहीं सोच पाएगी। हमारी उत्पादन श्रृंखला में जितने भी कमियां हैं, जो चीज बाहर से लानी पड़ती है, उसको एक बार भर लीजिए। रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड यहां उपयोग हो या दुनिया में एक्सपोर्ट हो, बीच में कुछ भारत के बाहर नहीं बनना चाहिए। ये जुनून के साथ सीआईआई ने चीजों को आइडेंटिफाई करना चाहिए। और ये पीएलआई स्कीम को बारीकी से देखोगे तो सारी चीजों में पीएलआई स्कीम आया हुआ है और इसकी इकोसिस्टम भी बनी है। मगर ये काम अब इंडस्ट्री ने करना चाहिए, और वो तभी हो सकता है जब सीआईआई सिर्फ रिप्रेजेंट करने की जगह प्लेटफॉर्म भी बन जाए एक बार, और समस्याओं का समाधान करने के लिए कुछ कॉन्क्रीट प्रपोजल लेकर आगे आए, जैसा आगे कई बार हुआ भी है, इस बार भी होगा, इसका मुझे विश्वास है मित्रों। डिफेंस, एनर्जी, चीप इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग हब, ये सारे चीजों में एक विशेष ध्यान देकर हमने आगे बढ़ने की जरूरत है। जो हमारा रुपया
बड़ी तेज गति से बाहर ले जाते हैं। इसको कंसंट्रेट करने की जरूरत है, प्राइवेट सेक्टर बनाने की भी जरूरत है। अंत में आपका समय थोड़ा ज्यादा हो गया है, अंत में मैं इतना ही कहता हूं, आप सभी का CIA के माध्यम से, प्लेटफॉर्म के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं। मित्रों, इंडस्ट्री जगत भी आइसोलेशन में नहीं जी सकता। 130 करोड़ लोगों के साथ भी हमने अपने आप को जोड़ना पड़ेगा, इनके हितों के साथ जोड़ना पड़ेगा, इनके सुख दुख के साथ जोड़ना पड़ेगा। और मोदी जी के नेतृत्व में जब हम ये आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इस वक्त इंडस्ट्री ने भी शताब्दी के अपने लक्ष्य तय कर इसको पूरा करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आइए हम सब मिलकर नया भारत बनाए, महान भारत बनाए और पूरी दुनिया भारत के ऐश्वर्य से, भारत की समृद्धि से और भारत की सुरक्षा की नीति से चकाचौंध हो जाए, इस प्रकार का भारत बनाए। यही आप लोगों से अपेक्षा भी है, अभ्यर्थना भी है। फिर से एक बार लेट होने के लिए आप सबसे क्षमापना। वंदे मातरम, भारत माता की जय। Thank you, sir. आपके प्रेरणादायक शब्दों से हमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Ladies and gentlemen, could we have another huge round of applause, please, for our Honorable Home Minister, of course, for enlightening us with his inspiring words. I would now like to request our Secretary, Ministry of Culture, Government of India, Shri Govind Mohan ji, to propose the vote of thanks, and could we have a round of applause for him too? मंचासीन महानुभाव, आज के सम्मेलन में उपस्थित सभी आदरणीय प्रतिभागीगण, मेरे लिए सौभाग्य का अवसर है कि मैं इस धन्यवाद ज्ञापन को आज यहाँ आपके समक्ष रख रहा हूँ, क्योंकि ये आज की जो सभा है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के उस दृढ़ निश्चय को परिलक्षित करती है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव महज एक सरकार का कार्यक्रम ना रह के पूरे समाज का कार्यक्रम हो, समाज के हर अंग को अपने आगोश में घेरे और हर भारतीय के जीवन को छुए। और इसी समाज का बहुत महत्वपूर्ण अंग है भारत का निजी उद्योग, जिसकी संस्थागत प्रणाली है, एक प्रणालियों में से एक है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जो भारत की आर्थिक धमनियों का प्रवाह निरंतर प्रवाहमान रहे उस ओर प्रयासरत है। तो संस्कृति मंत्रालय ने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ एक वार्ता आरंभ करी कुछ 6-7 महीने पहले कि वह कैसे आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ जुड़ सकते हैं। और इस वार्ता के दौरान एक बात ये उभर के आई कि जो 15 वर्ष पहले एक स्वप्न भारत के लिए रचा गया था, जिसके रचनाकार थे आज के माननीय प्रधानमंत्री और तब गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और जो स्वप्न आज पूरी तरह से हमारे सामने समिट का आयोजन किया था और जनवरी 2022 को नेशनल वॉलंटियरिंग वीक का 9वां एडिशन भी आयोजित किया था। CII भारत के शहरों में सहभागी नागरिक केंद्रित विकास मॉडल अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, जिसे सिटी कनेक्ट के नाम से जाना जाता है। आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष 2020 से CII मल्टी स्टेक होल्डर इंडिया एट 75 समिट्स का आयोजन करते आ रही है, ताकि 2022 के बाद भारत के एक समग्र दृष्टि पत्र पर काम किया जाए। सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव के लिए जो दिशा निर्देश दिए हैं, उसके अनुसार CII ने कई नई पहल की शुरुआत की है और हम आमंत्रित करेंगे, उसमें इस पूरे जो हमारा स्वप्न है उसको हम पूरे देश के सामने रखेंगे। सर, मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और भारत के यशस्वी परम आदरणीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पार्लियामेंट का सत्र अभी कार्याधीन है, लेकिन इस सत्र में अपना बहुमूल्य समय निकाल के आप हमारे समक्ष आज आज उपस्थित हुए, इसके लिए आपको हृदय से आभार सर। आपने
एज चेयरमैन नेशनल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी आज़ादी के अमृत महोत्सव को निरंतर प्रवाह दिया है, निरंतर ऊर्जा दी है, इसका नेतृत्व किया है और आज ये कार्यक्रम भारत के हर कोने तक विस्तृत हो गया है। इसके लिए भी मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ कर्नाटक के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री बासवराज बोम्मई जी का। आपने अपने व्यस्त कार्य से समय निकाला, आप भी हमारे साथ आज उपस्थित हुए, इसके लिए सर आपको हृदय से आभार। मेरे मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी, जिन्होंने संस्कृति मंत्रालय के मंत्री के बतौर आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम को निरंतर दिशा दी है, निरंतर हम लोगों का उत्साहवर्धन किया है। सर आपको भी बहुत बहुत आभार कि आज आप हमारे समक्ष आज उपस्थित हैं और आपने हम सबको दिशा निर्देश दिए हैं, मार्गदर्शन दिया है। जैसा कि माननीय संस्कृति मंत्री जी ने कहा, आज के मंचासीन जो वरिष्ठ अधिकारीगण हैं सीआईआई के, उनमें 3 संजीव हैं और यह एक इस बात का भी प्रतीक है क्योंकि संजीव का अर्थ संजीवनी से जुड़ा हुआ है। वो संजीवनी जो चिर निरंतरता की प्रतीक है, जो निरंतर जीवन की धारा प्रवाह होती रहे, उसकी प्रतीक है। तो ये एक प्रतीक है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का कि वो भी जो भारत की आर्थिक विचारधारा है, आर्थिक धमनियां हैं, उनको निरंतर प्रवाहरत रखती रहे, इस ओर इंगित करता है। और मैं सीआईआई का सर्वप्रथम हृदय से आभार प्रकट करता हूं। सीआईआई के अध्यक्ष श्री संजीव बजाज का, इंडिया एट 75 फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री संजीव गोयनका का और सर्वाधिक सीआईआई के महानिदेशक डॉक्टर चंद्रजीत बैनर्जी का, जिन्होंने दिन प्रतिदिन संस्कृति मंत्रालय के साथ एक तालमेल बना के इस कार्यक्रम को संकल्प से सिद्धि की ओर ले जाने का प्रयास किया है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। आप सभी मंचासीन महानुभावों का धन्यवाद। जय हिंद। Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, I would request all of you to please be seated. If I could request all of our dignitaries on stage to please be there for a group photograph. We will have everybody there. My sincere thanks to our chief guests, our guests of honor, and all of our dignitaries, industry leaders, and everyone for your time and valuable insights. This brings us to the end of our session. And I would request all of our guests who are present here to please be seated until our dignitaries leave the hall. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. समिट का आयोजन किया था और जनवरी 2022 को नेशनल वॉलंटियरिंग वीक का 9वां एडिशन भी आयोजित किया था। सीआईआई भारत के शहरों में सहभागी नागरिक केंद्रित विकास मॉडल अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, जिसे सिटी कनेक्ट के नाम से जाना जाता है। आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष 2020 से सीआईआई मल्टी स्टेक होल्डर इंडिया एट 75 समिट्स का आयोजन करते आ रही है, ताकि 2022 के बाद भारत के एक समग्र दृष्टि पत्र पर काम किया जाए। सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव के लिए जो दिशा निर्देश दिए हैं, उसके अनुसार सीआईआई ने कई नई पहल की शुरुआत की है और 2022 में भारत के नए सुबह के लिए नए प्रयासों को स्थापित किया गया है। इंडिया एट 75 फाउंडेशन ने फायर साइड चैट्स की शुरुआत की, जिसका नाम था आई हैव अ ड्रीम, जिसमें अपने क्षेत्र के उत्कृष्ट लोगों ने हिस्सा लिया और अपनी व्यक्तिगत अनुभवों पर संवाद किया और भारत के भविष्य के प्रति इंडिया एट 75 फाउंडेशन और सीआईआई रीजनल, स्टेट और जोनल ऑफिसेज में खास इंडिया एट 75 सेशंस आयोजित किए गए, जिसमें आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। Check.
Good morning, ladies and gentlemen. We are about to begin our session in just a little while. So I would request all of you to please take your seats and settle down. Also, we would request you to please put your mobile phones on silent mode. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ನಿಂತಿದ್ದೀರೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Ladies and gentlemen, all of you who are still standing at the back, I would request you to please take your seats. Thank you. Ladies and gentlemen, our dignitaries have arrived in the hall. If I could request all of you to please stand up, and a big round of applause as we have all of them joining us right now on the dais. Thank you. Thank you. नमस्कारा, सुप्रभात। आजादी के अमृत महोत्सव की संरक्षण में आयोजित तीसरे संकल्प की सिद्धि में मैं आज यहां उपस्थित हमारे गण्यमान्यों, अतिथियों और मीडिया टीम का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। इस सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य खासकर पिछले दशक में देश की क्षेत्रीय और सामाजिक उपलब्धियों का मूल्यांकन शुरू करना है, जिसमें विभिन्न भागीदार भाग लेकर इंडिया एट 100 का रोड मैप तैयार करें। मैं पहले स्वागत करना चाहूंगी हमारे मुख्य अतिथि भारत सरकार के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हमारे कर्नाटका के माननीय मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई जी का हार्दिक स्वागत करती हूं।
हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय पूर्वोत्तर क्षेत्र संस्कृति पर्यटन और विकास मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी का हार्दिक स्वागत करती हूं। विशिष्ट अतिथि माननीय सचिव संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार श्री गोविंद मोहन जी का स्वागत करती हूं। Ladies and gentlemen, to begin today's session, I would like to invite Mr. Chandrajit Banerjee, Director General, Confederation of Indian Industry, to deliver the welcome address. Could we have a round of applause for him, please? Namaskar. Mananiya Shri Amit Shah ji, the Honorable Minister of Home Affairs and Cooperation, Honorable Shri Basavaraj Bommai ji, the Honorable Chief Minister of the Government of Karnataka, Honorable Shri G. Kishan Reddy ji, the Honorable Minister of Culture, Tourism and Development of North Eastern Region, Shri Govind Mohan, the Secretary of the Ministry of Culture. We have here a strong panel from the industry, Mr. Sanjeev Bajaj, Mr. Sanjeev Goenka, Vikram Kirloskar, R. Dinesh, Sanjeev Puri, Rajan Navani, very, very distinguished government officials. This is a partnership between the government and industry. Strong presence from the Indian industry. The presence over here are just not people from this city, but also from various parts of the country. Ladies and gentlemen, excellencies, a very good morning. सबसे पहले तो मैं हमारे CII का तरफ से हमारे आदरणीय माननीय श्री अमित शाह जी को हमारे बीच में वेलकम करना चाहता हूं। सर, आज आप ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, यहाँ पे एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द CII एंड द इंडिया एट 75 फाउंडेशन। हम एक साथ इसको हम मना रहे हैं। संकल्प से सिद्धि कॉन्फ्रेंस जो हम 2 बार कर चुके हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर तीसरा एडिशन जो आज हो रहा है, उनमें आपको यहाँ पे हमारे बीच जो आप पधारे हैं, आप दिल्ली से आए हैं, रात को 1 बजे पहुंचे हैं इस कार्यक्रम के लिए, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा इनकरेजमेंट है इंडस्ट्री को। सर, आपको जब हम आके मिलते हैं इंडस्ट्री का साथ, आप ऑलवेज एनकरेज किए हैं हम लोगों को कि इंडस्ट्री को ऐसा बनना चाहिए जो इंडियन इंडस्ट्री कैन बी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एंड इंडियन इंडस्ट्री कैन बी ग्लोबली इन द फ्रंट। यू हैव गिवन अस दैट कॉन्फिडेंस सर। आपका जो कॉन्फिडेंस आपने बार बार हमको दिए हैं, उस और जो पार्टनरशिप का आपने हमको जो स्पेस दिए हैं, जैसे कैसे इंडस्ट्री और गवर्नमेंट एक साथ काम कर सकते हैं, आपने जो लाए हैं एक माहौल ऑफ ट्रस्ट, यू हैव गिवन अ ह्यूज इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रस्ट टू द इंडियन इंडस्ट्री। सर, वी आर इन बीइंग विद अस एंड टेकिंग अस थ्रू सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट targets that we have kept, and we are getting more and more ambitious. आज बहुत हमारे जो ambition जो आए हैं इंडिया एट 100 के लिए काम करने के लिए, ये प्रेरणा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और आपसे जो आए हैं, ये हमारे लिए एक बहुत ही significant विषय है। Sir, we are so happy that we have with us also the Honorable Chief Minister of Karnataka, Shri Basavaraj Bommai ji. Under your leadership, Mr. Chief Minister, we have seen some very important path-breaking initiatives, and for us, it's a great honor to be working with a large number of industry members. So we have 50 people from the CII's governing council, the National Council, present here from different parts of the country, besides many others, and we would like to hear you and how we can partner with your state for the future. My pleasure and honor also to really call out Shri G. Kishan Reddy ji, the Honorable Minister for Culture, Tourism and Development of Northeast. Sir, this entire partnership between the Ministry of Culture and Industry is of great value, and we will look forward to many more such occasions with you. Thank you very much for being with us here today. सर, आज जो हम
2008 साल के थोड़ा एक बात करना चाहते हैं सर। 2008 साल में जब हम एक बार गांधीनगर गए थे, ये फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे आदरणीय रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री जी का साथ हम मिल रहे थे, उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे। 2008 साल की बात है सर, और उस टाइम में हमने उनसे बात किए थे कि 2022 क्या इंडिया एट 75 का बारे में उन्होंने बहुत देर तक सुना क्या बात चल रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे प्रोफेसर जो थे, प्रोफेसर CK प्रहलाद हमारे साथ थे, और उन्होंने क्या बताया सर कि जब हम दिल्ली आएंगे तो इस पर काम करेंगे। सो उसी से ये जर्नी शुरू हुआ सर, इंडिया एट 75 का। So India at 75 really started its journey from that 2008, that was 15 years back. और आज हम जब आज का दिन में पहुंचे हैं सर, 2022 में खड़ा होके हम देख रहे हैं बहुत कुछ उस समय हमने ड्रीम किया था, आज वो रियलाइजेशन उसका देख रहे हैं हम। स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज मिशन, स्टार्टअप इंडिया, नीति आयोग के द्वारा जो 2019 का जो पेपर था, रिन्यूएबल एनर्जी का जो फोकस है, आज एक न्यू इंडिया को हम जो वी सी अ न्यू इंडिया इमर्जिंग। और इसके लिए आपका साथ, आपका गवर्नमेंट का साथ जो काम हमको उद्योग जगत से करना है, उसी का कुछ मार्गदर्शन आपसे हम उम्मीद करेंगे सर कि हम नेक्स्ट 25 इयर्स आगे जाते हैं, ये अगला 25 साल इंडिया एट 100 हम कैसे इंडिया एट 100 पे हम कैसे जा सके। वी आर ड्रीमिंग ऑफ इंडिया एट 100 सर। इंडिया एट 75 में आज हम बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हैं। आज हम जब देश विदेश में जाते हैं तो इंडिया का नाम जैसे आज ग्लोरियसली दिखाई देते हैं सारे विश्व में, इंडिया एट 100 में हम चाहते हैं इसको आगे लेके जाए एक पार्टनरशिप के रूप में। उसके ऊपर आपका विचारधारा, आपका डायरेक्शंस, आपका गाइडेंस विल बी ऑफ ग्रेट एनकरेजमेंट टू अस सर। वी हैव 300,000 कंपनीज सर, 3 लाख जैसे कंपनीज हमारे साथ जुड़े हुए हैं थ्रू आवर वेरियस एसोसिएशंस, थ्रू आवर डायरेक्ट मेंबरशिप। और आज हमने प्लेज किए हैं कि हर घर तिरंगा का जो एक मिशन है कि कैसे इस सारे कंपनीज में CII का द्वारा हमारे एम्प्लॉयज, इस कंपनीज में सारे एम्प्लॉयज जो है उन्होंने कैसे इसको आगे लेके जाए सर। इसमें भी आपका गाइडेंस बहुत जरूरत है हमारे लिए, और आज हम वो भी आपसे उम्मीद करेंगे सर। आई वांट टू कंक्लूड बाय ओनली सेइंग दैट CII will be completely pledged towards this mission of building a very strong and a new India under the leadership of this very dynamic government. Once again, a very warm welcome to Shri Amit Shah ji, our chief guest here today, and our guest of honors, Shri Bommai ji, the Chief Minister, and Shri Kishan Reddy ji, our Honorable Minister. Ladies and gentlemen, thank you very much. Thank you for the official welcome, Mr. Banerjee. I would now like to invite Mr. Rajan Navani, our Vice Chairman, Jetline Group of Companies, to deliver the industry remarks. Honorable Shri Amit Shah ji, the Honorable Minister for Home Affairs and Cooperation, our respected Shri Kishan Reddy ji, Honorable Minister of Culture, Tourism, Development of Northeastern Region, Honorable Shri Basavaraj Bommai ji, Honorable Chief Minister, Government of Karnataka, Shri Govind Mohan ji, Secretary, Ministry of Culture, my friends from industry, friends from media, ladies and gentlemen. It is indeed a pleasure to see everyone here on this very interesting occasion as we celebrate the Amrit Mahotsav, a journey that CII, India at 75 Foundation, and along with the Ministry of Culture, started way back in 2007. I think there was a commitment, as Chandrajit Banerjee rightly mentioned, to really be able to see how we can create an India that is based on the aspirations of our people, create an India that will work with the trilogy of an economic strength, technological vitality, and moral leadership working together. It was about 14 years ago when this exercise started, and I was part of the Young Indians exercise of CII. I was the chairman, and
I'm really honored that CII entrusted this journey of India at 75 as the chair of India at 75 Council to someone like me. But there are many others in this room and others who have been inspired to be able to take on this journey of transformation for themselves, their industries, as well as for the country through this magnificent exercise. There were thousands of people who were consulted, fisherwomen, there were folks from students and housewives. And what really emerged was a common thread that connected India pretty much the way for freedom connected India back in the 1940s. And that was a better life, a better economic livelihood, a better quality of progress for themselves and the next generation. And I think the meeting that Chandrajit Banerjee again referred to in 2008 was truly one inspiring moment, where as CII we were there. And I still remember as that conversation evolved, Honorable Prime Minister, who was then the Chief Minister of Gujarat, I think took that sankalp, and the 2014 when he got into power, setting up the very next day goals not for 2019 where the next election was, but when 2022, when we celebrate an occasion which is not only 75 years of Indian independence, but thousands of years of culture that we have. And now the Amrit Kaal, the next 25 years, to see how we can bring back India into a position of global leadership, which we already are very, very strongly excited and pretty much there already. And I must say, Honorable Minister, that, today we are here because of one very strong demographic dividend that we have. 1 in 10 people in the world is an Indian under the age of 25 years. And as we look at the next 25 years, I think that power that we have will probably get unleashed. There are many like us who have come from a traditional business generation. I'm a third generation business entrepreneur, but over the last decade have transformed ourselves to building new age businesses globally out of India. And there are many sitting in this room here who have been inspired to do the same. I think we look at the framework, we look at the policy incentives, we look at this camaraderie between business, government, youth, and everyone else to be able to create such multi-stakeholder platforms that we are on today, to be able to inspire many, many more to take that path to establishing India to its true position in the world, as we move ahead. The 19-year-old Jeremy who won a weightlifting medal, or the 4 women who went and won in a sport called long balls, which nobody knows, are truly inspirational, incidents for us here as we see us coming together as a country, involving women, youth, and inspiring everyone to really walk and march forward. Sir, you're here with us, and that's itself an honor. And we really look forward to your guidance and advice as we continue to strengthen India and its roadmap as we move on this journey. Thank you very much. Thank you, Mr. Navani. I would now like to invite Mr. Sanjeev Puri, our chairman for ITC Limited, to deliver the industry remarks. माननीय होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री बासवराज बोम्मई जी, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर कल्चर, टूरिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन श्री कृष्णा रेड्डी जी, श्री गोविंद मोहन, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, colleagues from the industry, ladies and gentlemen. Sustainable and inclusive development is the vision that the Honorable Prime Minister has articulated. And following that vision, under his leadership, the government has taken multiple steps to build a foundation for a new paradigm of socio-economic growth. India stands tall as far as commitment to sustainability is concerned. A number of initiatives have been taken, like the International Solar Alliance, the recent hydrogen mission, the renewable energy mission, amongst others. And we are the only nation, and this is a proud moment under the leadership of the Honorable Prime Minister, we are the only
nation that is, or amongst the very, very few that will be delivering on its Paris climate change agreement. India has made bold commitments in COP26, I'm sorry, and the commitments are for carbon neutrality by 2070 and emission reductions in the medium term. And with all this, the industry stands committed. There are a number of initiatives that the industry is also making towards adoption of renewable energy, sequestration, and of course, along with that, given that the climate crisis is here to stay, the climate crisis is not going away in a hurry because of the manner in which emissions are taking place in many other parts of the world. We also need a strong strategy for adaptation, which is an area that the industry too is committed towards. This also requires a very sustainable lifestyle, a lifestyle that is attuned to the culture of India with a lot of reuse and optimal use of natural resources. Sustainable and inclusive development is also incomplete unless we address the issue of the agri-value chains and multiply farmer incomes, because that's where nearly half of India's workforce earns a living. And this is an area that has got tremendous potential because the world food is expected to, the requirement is supposed to increase by 58 to 98%, and we are already dealing with food security issues. India has a lot of arable land, rich endowments, but we do have challenges. And that's where the opportunity is. Agriculture is also a sector that is threatened by climate crisis. And that's where I think the opportunity is for industry to work with the government and the farming community to empower them, to usher in next generation agriculture so that farmer incomes can be multiplied. And this is a huge opportunity given the employment multipliers. And this is also a sector where there is global demand. It also offers the opportunity for India to develop value-added, proud, made in India brands. And I must commend the government's PLI scheme that supports made in India brands. This is an immense opportunity. And CII too, with its various center of excellences like the Water Institute, the Green Building Institute, the CII ITC Center of Excellence on Sustainable Development, among others, is well poised to support this initiative. And in conclusion, may I reiterate the commitment of the industry towards sustainable and inclusive development. And on behalf of ITC, Honorable Minister, may I also commit to you that we will wholeheartedly celebrate Har Ghar Tiranga, not only within ITC, but our entire ecosystem. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you, Mr. Puri. Ladies and gentlemen, please put your hands together as I would like to now welcome Mr. R. Dinesh, Executive Vice Chairman, TVS Supply Chain Solutions Limited, who is here to share his views on it. Honorable Minister for Home Affairs and Cooperation, Amit Shah ji, Honorable Chief Minister of Government of Karnataka, Bommai ji, Honorable Minister of Culture, Tourism and Development, Kishan Reddy ji, Govind Mohan, Secretary, Ministry of Culture, friends and dignitaries on the dais, ladies and gentlemen. It gives me great pleasure to be part of the third edition of the Sankalpi Siddhi, which is organized by the Ministry of Culture, CII and the India at 75 Foundation. Honorable Minister, on behalf of the industry and on my personal behalf, I would like to thank you for your guidance and leadership, which has been immensely crucial in our journey so far. I mean, within 10 days, we will be completing India at 75, and we know how many of the initiatives which the government has taken, which other speakers also mentioned about, have helped us in emerging as one of the fastest growing economies in the world. In fact, I would say maybe it's a bright spot in the global economy, which has had its own challenges. It is true that we will need to make sure
that our growth strategies at this point are critical to be able to enjoy the benefit of the next 25 years and emerge to where we wish to be in 2047. Specifically, if I look at it from the supply chain sector and logistics, I think that is something where I think we have a lot of opportunities. First and foremost, we have learned from you on how we can focus on the multimodal concept of making sure shipping, rail and road get together, and how we can actually reduce the cost of doing business in India by working on this multimodal thought process. As all of us know, the Gati Shakti initiative has been something which has genuinely benefited and which will continue to be, so to say, maybe the forerunner for the rest of the world to follow. I do not believe there is any country in the world where there is a single digital platform for every infrastructure project to be tracked. We would suggest that we could actually look at seeing this digital linkage being established all across to the user sector to enable us further benefit and grow as we get to 2047. We are also aware that as we focus on this growth initiative, there will be a huge employment generation which we will focus on and make sure we are able to not only skill but also prepare the people for delivering the value which we are looking at. As we look at Make in India and other manufacturing initiatives, logistics is going to play, I would say, the defining role as far as that is concerned. And I can assure you that from the sector, we are ready to make sure that the Make in India and the PLI is made successful by reducing the cost of logistics and making it, I would call it, digitally enabled. And that brings me to the last point is how do we make sure that we continue to take the lead on the digitization of this sector, which I think already the new logistics policy is talking about. And as we prepare for the next 25 years and also be ready for the various challenges which the supply chain continues to face, I think we will be, I would say, not just well placed, but also be able to take the leadership through the digital initiatives which we will work on. Before I conclude, I would also like to pledge on behalf of our company, TVS Supply Chain, that we will work on the Har Ghar Tiranga campaign and our entire 14,000 employees will become part of this and support this initiative. Thank you very much, sir. Thank you, Mr. Dinesh, for sharing your views. I would now like to invite Mr. Vikram Kirloskar, Vice Chairman, Toyota Kirloskar Motor Private Limited, to deliver the industry remarks. Shri Amit Shah ji, Shri Basavaraj Bommai ji, Shri Kishan Reddy ji, all the various ministers from Karnataka state who have joined us, Shri Govind Mohan ji, all my friends, good morning. So one of the things in the last couple of years, especially during COVID, which really affected me, one was the Prime Minister talking about Atmanirbhar. I thought that was one of the most